Hello everyone, welcome to Utkarsh UGC Net. In today's session, we are going to move forward with the historical background of the modern age. Okay, इससे पहले हमने Victorian age के बारे में भी discussion किया था. We talked about Romantic age, Enlightenment age, okay, Restoration period and everything. And now we are moving forward with the modern age here. Okay, 1901 to 1945. Okay, basically we see the influence of World War I here. Okay. We see the influence of World War I from 1914 to 1918. Yes, we see the influence of World War I. Okay. Moving on to the background, here we see that the modern age, okay, the modern age basically refers to the period of literature, art, which we see here, okay, we see literature, art, culture, which began in 19th century and extended through much of 20th century, जो हम यहाँ पे देखते हैं, okay, it extended through much of 20th century, which we see here. Characterized by a deliberate break from traditional forms, conventions, which we see here, traditional forms, conventions. Also we see that it is often associated with the period following World War I. During which we see rapid industrialization, urbanization. Then we also see profound cultural shifts which occurred during this period. एजरा पाउंड में हम देखते हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज, ओके, वेर इन वी सी कि यहाँ पर जो है उन्होंने बोला मेक इट न्यू. ओके, एजरा पाउंड सेड मेक इट न्यू. व्हाट डू वी सी हियर? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मॉडर्न एज है, इट इज बेसिकली the works which we see in the modern age, they have these themes of fragmentation, okay, moving away from the traditional norms of the Victorian age. completely हम देखते हैं Victorian age के अगेंस्ट यहाँ पर हमारी जो थीम्स है, जो भी ट्रेडिशनल जो हमारे मीटर्स थे, ठीक है, जो भी हमारी राइटिंग स्टाइल था, ओके, उससे हम देखते हैं दैट दे मूव्ड अवे. दे टॉक्ड अबाउट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ओके, वी सी द वर्क्स ऑफ जेम्स जॉयस, Virginia Woolf. Okay, so here we see that it was basically the reaction. Okay, we see that they were against the Victorian ideals, right? They were against the Victorian ideals. Okay. Then here, what do we see? That they basically talked about stream of consciousness. Themes related to subconscious mind became important because of the work of the Sigmund Freud. Okay, Sigmund Freud का जो work था, interpretation of dreams. Okay, we see Sigmund Freud works of interpretation of dreams. Okay, here we see stream of consciousness, wherein it refers to the flow of thoughts and emotions. तो हम देखेंगे बहुत ही अनकन्वेंशनल जो हमारे मीट्रिकल फॉर्म्स था, जो ट्रेडिशनल मीटर ब्लैंक वर्स, दे वर नॉट फॉलोइंग दीज स्ट्रिक्ट कन्वेंशंस. ओके, सो वी सी कि जो हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स है 1899 में, द वर्किंग ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में बात हो रही थी. मॉडर्निस्ट फिक्शन, इट टॉक्ड अबाउट इनर सेल्फ, कॉन्शियसनेस नॉवेल्स, ओके, वेयर इन वी सी दैट थॉट्स हैव बीन गिवन एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर. It played an important role which we see here.
देन वी सी दैट मॉडर्न एज वॉज ऑल्सो फॉलोड बाय द रोरिंग 20s. ओके, हम देखते हैं कि इस टाइम पे जो टाइटैनिक क्रैश है दैट ऑल्सो हैपेंड, और उससे भी जो है इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हम देखेंगे कि इकोनॉमिक क्रैश यहाँ पर आया था, इंस्टेबिलिटी आई थी, रोरिंग 20s. ओके, द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. बट उसके बाद जैसे ही हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, ओके, इन 1929, विच वॉज फॉलोड बाय ग्रेट डिप्रेशन and the Titanic disaster, okay, which happened on April 15, 1912, right. World War I happened from 1914 to 1918. तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हम देखते हैं जिस तरीके से, और फिर उसकी रिकवरी भी हुई. बट देन ऑल्सो वी सी दैट ग्रेट डिप्रेशन हैपेंड, टाइटैनिक डिजास्टर हैपेंड. ट्रू. सो मूविंग फॉरवर्ड वी ऑल्सो सी कि जिस तरीके से अगर हम बिगनिंग देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पर था, ओके, मटीरियलिज्म पीक पर था. तो हम देखते हैं जैसे कि T.S. Eliot जैसे राइटर्स, दे वर टॉकिंग अबाउट द वर्क्स, द थीम्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ओके, द थीम्स ऑफ डिसइल्यूजनमेंट इन हिज वर्क. वी सी द वेस्टलैंड. ओके, तो इन वर्क्स में हम इस तरीके की थीम्स भी यहाँ पर देखते हैं, वेर इन वी सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉलिटिकल अपहीवल्स, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, ओके, द ग्रोइंग सेंस ऑफ individual alienation. Okay, we see all these aspects here referring to impressionism, symbolism. Okay, impressionism में आज सुबह ही हमने जो है YouTube की क्लास में पढ़ा था. डेली हमारी जो मॉर्निंग की YouTube क्लास होती है 8:30 पे, wherein we are talking about the senses. impressionism में जो भी हमारे सेंसेस है, जो impressionistic जो आर्ट भी होती है, ओके, उसमें हम थीम्स के बारे में देखते हैं, ब्रश स्ट्रोक्स, ओके, कलरफुल वाइब्रेंट हमारी आर्ट होती है. सिम्बोलिज्म में सिम्बल्स के थ्रू जब हम देखते हैं लिटरेचर में कुछ डिपिक्ट किया जाता है, ओके, विच सॉट टू रिप्रेजेंट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस विच वी सी हियर, एंड इमोशनल ट्रूथ्स विच वी सी हियर. ओके, इट रेफर्स टू subjective experience and the emotional truth which we see here. Okay, yes, right. अगर हम themes की बात करें, okay, we see fragmentation, discontinuity, okay, all these themes are prominent here. Then the search for meaning and identity जो हम यहाँ पे देख रहे हैं. Yes, so we see all these themes here in modern age. Okay, so I hope that the short introduction which we had for modern age, it was helpful. इसी तरीके के जो हमारे डिटेल्ड हमारी जो वीडियोस हैं विद द MCQs, ओके, यूट्यूब पे डेली हमारी जो है सुबह 8:30 क्लास होती हैं. और अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, इफ़ यू वांट टू कवर एवरीथिंग, ओके, सो हियर वी सी, ओके, यू कैन जॉइन आवर 2.0 बैच जो हमारे लिए, ठीक है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ पर आप पेपर 1 जो है उसकी भी बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, और जो हमारा पेपर 2 है इंग्लिश लिटरेचर, उसकी भी जुड़ के हमारे साथ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमारी लाइव क्लासेस होती हैं. ओके, यू कैन स्टडी इन ए कॉम्प्रिहेंसिव वे. लाइव क्लासेस रहते हैं, इंटरैक्टिव रहती हैं, और ज्योग्राफी, कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस की भी हमारी बेहतरीन फैकल्टीज़ हैं जो आपको कवर करा रही है सब कुछ. इसी के साथ हमारा पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप लेते हैं तो उसका जो है अफोर्डेबल प्राइस है, और भी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको हमारे कोर्स मिल रहे हैं. एंड देन वी ऑल्सो हैव द रिकॉर्डेड बैचेस फॉर हिंदी एंड साइकोलॉजी, और इसको भी अगर आप पेपर 1 के साथ लेते हैं तो आपको अफोर्डेबल प्राइजेस में ही मिलते हैं. ओके, so this was the informational video from my end. I hope you find it helpful. If you did, do like, share and subscribe to the channel. Thank you so much everyone. Stay tuned and have a nice day ahead.